Good morning to all of you. Esteemed chief guests and the honorable speakers, welcome to the program National Unity and Communal Harmony. This type of programs are very important. This is for the brotherhood, for the peace and for the prosperity. We are now going to start the program, and before the honorable speakers deliver their speeches, I would like to honor our chief guests, and for that I would like to request Shri Veerbhadra Singh Chauhan sir, the Honorable Director, CA Media Group, to come forward along with our event coordinator, Rukhsana Muhammad Rafiq Faruqi, to honor our first chief guest, Shrimati R.P. Bain Patel, the Honorable President of Nagarpalika Board sir. Muhammad Afzal Maulana Abdul Haq Mention Sahab, our chief guest, to get honored. And to give the honor, I would request again Veerbhadra Singh Chauhan sir. Mr. Kamlesh Rohit sir, the Honorable Director of Knowledge Group of Institution. Without their support and encouragement, this program would not have been possible. I would like to request Kamlesh sir, please get. And before they would deliver the speech, it's our pleasure that we would like to honor them as well. I would like to request Shri Shyam Swami ji and Shri Ghanshyam Jeevan Swami ji to come on the stage. To join on the very extreme left, Rasa Jamia Arabiya, Darul Islam Ani. Please give him a big hand.
Now we shall start the program. Correct? I would like to request Shri Veerbhadra Singh Chauhan, the Honorable Director, CA Media Group. He is also retired Joint Director from Ministry of Defence, New Delhi. He is also the co-founder and the chairman of our social wing called Human Development Foundation, a registered charitable organization in Ireland. I would like to request sir to give a brief introduction about the program on national unity and communal harmony. Good morning, ladies and gentlemen. As you already told you about me, and as you know, this is a program which we are going to have national conference on national unity and communal harmony. As you know, they are urgent. This is the requirement of the day actually. You have seen a lot of things are going on, lot of conflicts are there, other things that you are seeing day to day. You must be going through the news as well as with the media also. So now to curb these things, we have to have this thing very need is there, and I can our distinguished speakers will tell you about the pros and cons of this, and then how to improve on this in your day-to-day life. Thank you very much, all of you. Alright, thank you Shri Chauhan sir for the introduction. Now I would like to invite our first speaker, Mr. Vora Irshad sir, to deliver his speech on a very interesting topic, national unity and communal harmony. Over to you, sir. गुड मॉर्निंग। डांस पर बैठे हुए मंचस्थ महानुभाव, आज के कार्यक्रम के इनवाइटेड गेस्ट वर मोहम्मद अफजल सर, पुरोहित सर, आरती मैडम, वीरभद्र सिंह चौहान सर, रफीक सर, और आज के कार्यक्रम के चश्मो चिराग और कौमी एकता के हिमायती रिस्पेक्टेबल संत स्वामी जी, मौलाना साजिद साहब, परवार अमीन सर, और मेरे मुल्क के चमन के फूल मेरे नवयुवाओं, आज की जो एक कॉन्फ्रेंस है उसका जो सब्जेक्ट है नेशनल यूनिटी एंड कम्युनल हार्मनी, यानी कि राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता, भाईचारे। इसमें दो शब्द हैं, एक कौमी और एक एकता। इसमें कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। पहली बात तो यह है कि हम सब भारत के एकजुट हैं, चाहे हम किसी भी मुल्क, उत्तर के हो, पूर्व के हो, पश्चिम के हो, दक्षिण के हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर एकता होनी जरूरी है, लाजमी है। लोग सवाल करते हैं कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, लेकिन सवाल जो उठता है यह है क्या दिल मिलते हैं या नहीं मिलते। हमारा दिल मिलना चाहिए। इसलिए मैं एक बात करूं कि दिल्ली के अंदर एक हमारे बड़े सूफी संत थे, उनके पास उनका एक तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट, एक शिष्य एक गिफ्ट लेकर आया और गिफ्ट में उन्होंने कातर दी। तो सूफी संत ने कहा कि मेरे प्यारे, मेरे बेटे, तू मेरे लिए कातर लाया, इससे बेहतर होता कि तू सुई लाता। सुई समझते हो ना? हालांकि जाहिरी एतबार पर देखा जाए तो कातर बड़ी चीज है,
सुई छोटी चीज है। तो उस शिष्य ने, उस स्टूडेंट ने सवाल किया कि गुरु ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो जवाब दिया, ये हम सबको अपनी दिल की दुनिया के अंदर लिख देना चाहिए कि कादर जो है वो काटने का काम करती है और सुई जो है वो जोड़ने का काम करती है। बात को समझने की जरूरत है कि कातर काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। और हमारे मुल्क को, हमारे देश को आज के दौर में कातर की तरह काटने वालों की नहीं, बल्कि सुई की तरह जोड़ने वालों की सख्त जरूरत है। जो आज ये कॉन्फ्रेंस है ना, सीआई मीडिया ने की है, मैं रफीक सर और चौहान सर और उनकी पूरे टीम को मेरे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज के उन्होंने ये कौमी एकता या नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस रखी है। दोस्तों जरा इस स्टेज पर आप नजर डालिए, ये स्टेज आपको कितना खूबसूरत दिखता है। ये स्टेज पर जहाँ यमुना और जमुना की यहाँ तुम्हें संगीत नजर आती है, इस स्टेज पर से राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता, भाईचारगी, अमन का यहाँ से उसकी खुशबू की महक आ रही हो। और ये डायस पर बैठे हुए ये और सामने बार बैठे हुए आप, हम सब बड़े नसीबदार हैं। इसलिए नसीबदार है कि आज हमारा वक्त, हमारा टाइम एक देश के इतिहास के लिए काम आ रहा है। इस बात को मैं देखकर ये कह सकता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, न हिंदू निकलिया न मुसलमान निकलिया, कफन उगारी में जोयू तो सब इंसान निकलिया। उस वक्त अल्लामा इकबाल ने जो शब्द कहे थे, मुझे आज वो शब्द सच होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों वो दिन को याद करो जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, हम अंग्रेजों के दमन के नीचे थे। वो सफेद चामड़ी वाले घोड़े ने हमारी भारत की इज्जत को धूल में मिला दिया था। उस वक्त हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिल रहे थे और हमने कौमी एकता की ताकत से आजादी हासिल की। जब तक हमारे मुल्क में, हमारे देश में कौमी एकता रहेगी, हमारा देश प्रगति करता रहेगा, हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं है। ये बात याद रखनी चाहिए। और एक बात ये याद रखो कि इतिहास के कुछ पन्ने से मैं आपको कौमी एकता के कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अब शहीद अशफाकुल्लाह खान को पहचानते होंगे, वो हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर हैं। जब उनको फांसी की सजा दी गई और उनको रस्सी पर लटका दिया गया, उस वक्त उन्होंने कौमी एकता का एक मैसेज दिया और कहा कि मेरे भारतवासियों, हमने देश के आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपनी जान को शहीद किया है। इस देश को बचाने के लिए आपको आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि उन्होंने अपनी महिलाओं को विधवा किया, उनके बच्चों को उन्होंने यतीम किया, इसलिए किया कि एक मुल्क दिखाते, एक देश के खाते। और इस मीडिया के जरिए मैं एक पैगाम सुनाना चाहता हूँ मेरे भारत देशवासियों को कि राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता और भाईचारे का एक आसान रास्ता यह है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल है तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्लाह खान की तलाश कीजिए। अगर आप अशफाकुल्लाह खान हैं तो अपने आसपास से राम प्रसाद बिस्मिल की तलाश कीजिए। अगर वो आपको मिल जाए तो उनके कंधे पर हाथ रखिए, उनके चेहरे के सामने मुस्कुराइए और फिर कहिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है,
ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मेरे दोस्तों, हम एक नारा अक्सर बोलते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के वक्त में ही हम कौमी एकता से रहे हैं, आज भी हम कौमी एकता से रहते हैं और रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। मैं आपको एक अहमदाबाद का 1975 का एक वाकया बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ कि जब 1975 में 1975 के अंदर अहमदाबाद के अंदर कौमी फसादात हुए। ये सुनने जैसा किस्सा है, बहुत जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। 31 दिसंबर 2017 के गुजरात मित्र अखबार में ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ था कि जब 5 दिन अहमदाबाद में लगातार कर्फ्यू रहा और जब लगातार कर्फ्यू रहा तो हिंदू की बहुमती वाले मोहल्ले में एक मुसलमान गरीब फैमिली रहती थी। उनके पास खाना कम पड़ गया। इसकी बात का जब पता उनके पड़ोस में रहने वाले हिंदू भाई को पता चला तो वो अपने घर गया और अपनी फैमिली से कहा कि हम 2-2 लुक़मे कम खाएंगे, लेकिन मेरे मोहल्ले में, मेरी सोसाइटी में मेरा मुसलमान भाई भूखा मरना नहीं चाहिए। ये मेरे भारतीय संस्कृति है। उन्होंने कुछ कई दिन, जब तक हालात सुधर न गए, उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया। कुछ मुद्दत के बाद वो हिंदू वडील बीमार हुए तो मुसलमान भाई को पता चला तो उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा, अपनी मजदूरी छोड़ी और जब तक वो हिंदू वडील हॉस्पिटल में रहे उनकी सेवा की। मैं आपको कहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की वो एकता है कि हमें कोई भी ताकत हो, हमें अगर हम कौमी एकता के साथ रहे तो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं है। चलो मैं दूसरी बात बताऊं कि जब उज्जैन के अंदर कुंभ का मेला लगा, कुछ सालों पहले की बात है, वो भी अखबार में आया था, तो इंतजामी लाइन से पब्लिक ज्यादा आ गई तो रहने का एक प्रश्न खड़ा हुआ। तो उज्जैन के मुसलमानों ने इस ऐलान के साथ मस्जिद के दरवाजे खोल दिए कि आओ कुंभ में मेले में आने वाले मेरे हिंदू भाइयों, ये मस्जिद के दरवाजे आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, आप यहाँ रह सकते हो। यह है मेरे भारतीय संस्कृति। और एक बात आपको बताऊं, ये मंजर भी आपकी आंखों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लें। अब आ रहा है गणेश चतुर्थी का विसर्जन का जुलूस होगा, देख लेना। हमने तो अपनी आंखों से देखा है मेरे गांव में कि जब गणेश चतुर्थी का विसर्जन निकलता है तो जब अजान की आवाज मस्जिद में होती है तो अजान की आवाज के साथ हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि इसको रोक दिया जाए। हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज को खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद हम जुलूस को आगे ले जाएं। मेरे दोस्तों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि तुम ऐसे नवयुवा हो कि आपको ये कौमी एकता को आपको आगे बढ़ाना है। मैं अपनी खुद की बात करूँ, जब मैं आनंद में 2016 के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट हुई टीचर की, तो भरत आर पटेल दाढ़ी को आप पहचानते होंगे। मैं एक मुस्लिम था, उन्होंने मुझे आनंद जिला कारोबारी के अंदर मुझे स्थान दे दिया। हालांकि मुझे 3 महीने हुए थे आके और मैं मुस्लिम था, उन्होंने मुझे कारोबारी मेंबर बना दिया। वो हिंदू थे, पटेल फैमिली से बिलोंग करने वाले, और मैं एक मुस्लिम। 3 महीनों में उन्होंने मुझे कारोबारी मेंबर बनाया और 1 साल के बाद उन्होंने मुझे गुजरात राज्य उच्चतर माध्यमिक एसोसिएशन के अंदर पूरा राज्य का कारोबारी बनाया। ये हमारे देश की आज की बात करता हूँ कि ये कौमी एकता के ऐसे एग्जाम्पल है। मैं एक बात कहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रही है कि हम में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम आपस में एक होके रहे हैं, एक दूसरों
मैं कहता हूँ गीता का भी एहतराम हो, गीता का भी एहतराम हो, कुरान पर ईमान भी हो, मंदिर में भजन कीर्तन हो, मस्जिद में अजान भी हो। गीता का भी एहतराम हो, कुरान पर ईमान भी हो, मंदिर में हो भजन कीर्तन, मस्जिद में अजान भी हो। आसमान पर तारों के संग जैसे चांद चमकता है। हम दुनिया वाले देखते हैं ना, नीचे से आसमान में क्या चमकता है? चांद चमकता है। आसमान पर तारों के संग जैसे चांद चमकता है, वैसे पूरी धरती पर अब रोशन हिंदुस्तान भी हो, ऐसे पूरी धरती पर हिंदुस्तान भी हो। मिलजुल कर त्योहार मनाओ, होली ईद दिवाली सब मिलजुल कर त्योहार मनाओ, होली ईद दिवाली सब। 9 रात्रों में व्रत सब रखे, रोजा भी हो रमजान भी हो। 9 रात्रों में व्रत सब रखे, रोजा भी हो रमजान भी हो। मुल्क के खातिर जीना मरना तो भी एक इबादत है, मुल्क के खातिर जीना मरना भी तो एक इबादत है। सरहद पर हम जान लुटा दे, ये दिल में अरमा भी है। सरहद पर हम जान लुटा दे, ये दिल में अरमा भी है। दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे पूछूं कि आपको विकास चाहिए तो आप क्या कहेंगे? जवाब दो। मतलब बोलते क्यों नहीं हो? जवाब बोलिए आप। ना बोलिए ना। विकास चाहिए तो आप कहेंगे हाँ। मैं आपको सवाल करूं कि दुनिया के अंदर हमें अच्छी पोजीशन बनानी है तो आप क्या कहेंगे? बनानी है। तो अब मेरी बात गौर से सुनिए। हमें विकास करना है, हमें हमारी पोजीशन अच्छी बनानी है, तो इसके लिए हमें ऐसा नागरिक बनना पड़ेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान पर हमें एक नज़र डालनी पड़ेगी। बगैर सुरक्षा के हम कभी भी हम देश का विकास नहीं कर सकते। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक। बगैर सुरक्षा को कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ संविधान के जरिए, बड़ा ध्यान से सुनना, कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी मजहब का हो, उनको सुरक्षा का हक मिलना चाहिए। तो एक छोटी सी मैं वार्ता कहता, लेकिन ये वार्ता नहीं है, बड़ी बोधदायक वार्ता है और आपको मजा आएगा। एक पोपट राजा थे और एक पोपट रानी थी। दोनों घूमते घूमते एक जंगल में गए तो पोपट रानी ने कहा कि जंगल वीरान पड़ा हुआ है, उज्जड़ है, इसमें पेड़ पर से पत्ते भी नीचे गिरे हुए हैं और पूरा जंगल वीरान है। तो लगता है कि यहाँ कोई घुवड़ आ गया है। क्या लगता है? कि यहाँ कोई घुवड़ आ गया है, जिसकी वजह से आज जंगल उज्जड़ दिख रहा है। कितने लोग होते हैं जो सुकन अपसुकन में मानते हैं, लेकिन स्वामी जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा भविष्य और हमारा तकदीर बनाने वाला सर्जनहार किसी के हाथ में नहीं है। तो वो पोपट रानी ने कहा राजा को कि लगता है कि घुवड़ आ गया। तो बाद एक सामने वाले पेड़ पर, दरख्त पर एक घुवड़ बैठा हुआ, उन्होंने ये बात सुन ली तो उड़कर, हालांकि जब तो प्रेमी बात करते हो तो तीसरे को नहीं सुनना चाहिए, तो पोपट राजा और पोपट रानी ने बात की तो घुवड़ ने सुन ली। वो उड़कर आकर बैठ गया और उन्होंने कहा कि हेलो, आप कहाँ से आए हो? तो पोपट राजा ने आंसर दिया, जवाब दिया कि फलाने जगह से आए हैं, उड़ते उड़ते थके हुए हैं। तो घुवड़ होशियार था, उन्होंने कहा कि आप तो मेरे मेहमान हो, आप तो मेरे गेस्ट हो, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आज दोपहर का खाना तुम मेरे साथ खाओ। जब ये कहा तो पोपट राजा ने जवाब दिया, आंसर दिया कि अच्छा ठीक है, डोंट वरी, हम आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं। दोनों ने दोपहर का, तीनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। ध्यान से सुनना, ये वार्ता नहीं है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक मोरल छुपा हुआ है। साथ में बैठकर खाना खाया। खाना समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद, वो घुवड़
पोपट रानी के पास आकर बैठ गए और पोपट रानी के कंधे पर हाथ रखा और क्या कहा बताएं कि चल मेरी रानी, मेरी वाइफ, हम साथ में घूमने जाते हैं। तो सामने पोपट राजा, उनका हस्बैंड बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई तू कैसी बात करता है, कि मेरी वाइफ है, ये मेरी पत्नी है। पोपट रानी ने भी कहा कि मैं तेरा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा तो राजा, मेरा पति पोपट राजा है। दोनों में बात चली, लेकिन घोड़ बहुत बड़ा होशियार था, चालाक था। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं और जज के सामने पूरा मुकदमा सुना के फैसला ले लेते हैं, जजमेंट ले लेते हैं। तो तीनों गए कोर्ट में। अब सुनना, जब कोर्ट में गए तो हुआ ऐसा कि तीनों ने अपना मुकदमा सुनाया। सुनाने के बाद जज ने वो जजमेंट दिया। बोलो जजमेंट क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, पोपट रानी है वो किसकी है? घोड़ की है क्या? पोपट राजा की है। हमारे एतबार से देखा जाए तो पोपट राजा की है। तो जजमेंट में जज ने वो फैसला सुनाया कि पोपट रानी पोपट राजा की नहीं है, बल्कि वो घोड़ की पत्नी है। वो फैसला सुनाया। ये बात सुनकर पोपट के दिल के अंदर दौरे पड़ गए। वो रोने लग गए। और वो तो उसको ही पता चलता है मैडम कि जिसकी पत्नी न हो, और जिसकी पत्नी चली है उनको ही पता चलता है कि पत्नी के जाने के बाद क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो पोपट राजा जो था वो रोने लगा और चल दिया। तो जब जा रहा था तो पीछे से घोड़ ने आवाज लगाई, क्यों पोपट राजा, तुम कहाँ जा रहे हो? जरा रुक जाइए, जरा ठहर जाइए, ये आपकी पत्नी जो है ना पोपट रानी, उनको साथ में लेके जाइए। तो पोपट राजा ने कहा कि देख घोड़ भाई, तुम मेरे जख्म पर नमक मत छिड़को, मैं ऑलरेडी दुखी हूं और ज्यादा क्यों दुखी करते हो? तो उन्होंने कहा कि जरा पास आइए और मेरी बात अब ध्यान से सुनना। घोड़ ने पोपट राजा को पास में बुलाया और कान में जाके कहा कि मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकारता हूं और मैं शर्मिंदा हूं, मैं सॉरी बोलता हूं आपको। ये पोपट रानी जो है ना वो आपकी ही है, मेरी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, घुवड़ कहता है, क्या कहता है कि एक बात याद रखो, घुवड़ के बैठने से कोई जगह, कोई स्थान, कोई प्लेस उज्जड़ और वीरान नहीं होता। जब दुनिया में से इंसाफ खत्म हो जाते हैं तब दुनिया उज्जड़ और वीरान लगती है। क्या कहा कि घुवड़ के आने से कुछ उज्जड़ और वीरान नहीं लगता। जब दुनिया में से क्या इंसाफ खत्म हो जाता है तब दुनिया उज्जड़ और वीरान लगती है। मैं यहाँ कहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर से मीडिया के सामने बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उनको संविधान के जरिए सुरक्षा मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तब हम दुनिया को कह सकेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलशिता। तब हम दुनिया को कह सकेंगे ना। एक एग्जांपल देता हूं, आपने कुत्तों का टोला देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। अगर कुत्ते के टोले में अगर हम पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? सब कुत्ते भाग जाएंगे। बोलो क्यों भागेंगे? क्यों भागेंगे? उनके अंदर एकता की कमी है, वो एक नहीं है, वो आपस में झगड़ते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो मधुमक्खी के झुंड के अंदर, मधुमक्खी के झुंड के अंदर एक पत्थर डाल के दिखाइए, बोलो क्या होगा? सब एक होके पीछे आए। मैं आपसे कहता हूं ये पंच महाभूत है स्वामी जी, राइट ना? ये पंच महाभूत है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीच की जो उंगली है, हमारे इस्लाम में बोलता है साथ, वो सबसे बड़ी है ना? वो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, हमारे देश में बहुमती में साथ में रहने वाले ये जितने भी दिखते हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
वो सब लघुमती माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन ये मैसेज देता है हमें पंच महाभूत कि देखो दिखने हम ऐसे हैं ऊंच नीच, लेकिन जब देश की बात आए, जब विकास की बात आए, जब अमन अमान की बात आए तो हमें ऐसे जुड़ जाना चाहिए। देखो सब कैसा दिखता है, सब कैसा दिखता है, एक दिखता है ना। तो हमें भी आपस में एक होकर रहना पड़ेगा, इत्तेहाद के साथ हमें रहना पड़ेगा। और आखिर में दो बात करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अपना क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं। इस मीडिया के जरिए मैं पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा भारत जो मुल्क है ना, वो एक गुलदस्ता है। आपने फुलदानी देखी है कि नहीं देखी? ये भी बुके देखो तो फुलदानी के अंदर अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो इसके जरिए फुलदानी बहुत अच्छी दिखती है, खूबसूरत दिखती है। अगर इसमें से एक भी फूल अगर करमाया हुआ हो तो क्या होगा? इस फुलदानी की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसी तरह हमारे भारत देश के अंदर रहने वाले, हमारा भारत देश एक गुलदस्ता है, एक फुलदानी है। उसमें रहने वाले मेरे हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब उसके फूल हैं। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कौमी एकता रही, हर धर्म के लोग को प्रगति का चांस दिया गया, उनको खिलने दिया गया, तो जिस तरह उस फूल में से महक आती है, सुगंध आती है, इसी तरह ये जो हमारी भारत की जो खूबसूरती है वो दुनिया के अंदर कायम और दायम रहे। लेकिन किसी भी कौम को, या किसी हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसको खिलने का चांस नहीं दिया गया, प्रगति करने का चांस नहीं दिया गया। तो सुन लो मेरी बात कि हमारे भारत देश की छवि विश्व के अंदर खराब हो जाए, इसलिए हमें एक होकर रहना पड़ेगा। फिर मैं बात ये मैसेज दूसरा देता हूं इस मीडिया के सामने और आप सबको और हम सबको कि याद रखो ये भारत की सरजमी जो है वो ऋषि मुनियों की सरजमी है, साधु संतों की सरजमी है। हमारे भारत देश वो मोहब्बत का देश है, इसमें प्रेम है, अमन अमान है, इसके अंदर शांति है और इस शांति को हमें बाकी रखना है, इस शांति को हमें आगे ले जाना है। तो एक हिंदुस्तानी मुसलमान की आज की कॉन्फ्रेंस में कही हुई बात को अपने दिल की दुनिया के अंदर लिखने दें। फिर मैं कहता हूं कि अगर हमें हमारी एकता को कायम रखना है, हमारे देश को आगे ले जाना है, तो एक हिंदुस्तानी मुसलमान की इस कॉन्फ्रेंस में से कही हुई बात को अपनी दिल की दुनिया के अंदर लिख देना कि अगर हमने एक साथ मिलकर प्रगति की, हमने एक साथ मिलकर विकास किया, तो मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि हमने हमारे भारत को 15 साल ऐसे दे दिए जिसमें एक भी कौमी फसाद ना, एक भी कौमी दंगा ना हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं 16वें साल हमारा देश दुनिया की महासत्ता हो। आपको सुनना कि अगर 15 साल ऐसे दे दिए कि एक भी कौमी दंगा ना हो, तो 16वें साल में हम दुनिया की महासत्ता होंगे। दोस्तों हमें जब सोचना है, पहचानना है कि हमारे मुल्क की तरक्की जो है, हमारे मुल्क का जो विकास है वो विकास कौमी एकता के अंदर है। हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा। तो इसके बाद पर मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब का अदब करते हैं, हम सब एक दूसरे का इज्जत करते हैं। उस बात पर मुझे चंद शेर कहने हैं। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करते हैं, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। अब सुनना, कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम। कुरान की
आसान करेंगे हम मुश्किल, एक दूजे की आसान करेंगे हम। जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा है, जान से प्यारा हमें अपना तिरंगा है। हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। दोस्तों, इस शहर के अंदर दो तीन बहुत अहम बातें थी। मैं अपनी बात को खत्म करूं इससे पहले मैं ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करता हूं, बंदगी करता हूं, दुआ करता हूं कि हमारे मुल्क में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको अंदर एकता को कायम रखना, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखना, हमारी राष्ट्रीय एकता को सलामत रखना, हमारे देश को, अमन और अमान को सलामत रखना। बस इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। लेकिन आप लोगों को, मेरे बच्चों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आप देश के वो करोड़रज्जु हैं, मेरे नौजवान ध्यान से सुनना। ये कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता की कॉन्फ्रेंस में कि आप देश के वो करोड़रज्जु है जिस पर आने वाला कल का भारत है। आप जो कॉलेज में पढ़ते हो, जिस जगह पर रहते हो, उस जगह पर आपको एक होकर रहना पड़ेगा। आप नवयुवा को ही देश को एकता का सबक सिखाना है। जहां कहीं दरार होती है वहां मौका परस्त अपने लाभ, अपने फायदे को ढूंढते रहते हैं। तो मैं आपको मैसेज देता हूं कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन आज ये कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही है, लेकिन इस मैसेज को हम पूरी दुनिया को के इस मीडिया के जरिए पहुंचाएंगे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। रफीक भाई और उनकी पूरी टीम का मैं दिल से शुक्र अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। So energetic and absolutely brilliant. I guess we should give him a round of applause. Please give him a big hand. Right. आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीछे के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वहाँ पर बैठेंगे, जो चेयर वैकेंट है, तो दैट वुड बी ग्रेट। जो पीछे स्टूडेंट्स हैं ना, थोड़ा आगे आप इसमें फैकल्टी भी होंगे, तो प्लीज ज्वाइन अस। प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि कैन ज्वाइन। आगे मैडम, के साथ रहना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। हम सब ने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कि कछुआ और खरगोश। कछुआ धीरे धीरे चलता है और जो खरगोश है वो सो जाता है। राइट, सुनी है ना? प्लीज गिव मी अ नॉइस। सुनी है ना? और जो स्टेज पे हमारे जितने भी आदरणीय मेहमान हैं, उन लोगों ने भी ये स्टोरी सुनी होगी। फिर जो कछुआ धीरे धीरे करके रेस जीत जाता है, उसका एक मॉरल निकलता था, उसका एक अर्थ निकलता था। वो सबको शायद मालूम होगा। उस स्टोरी का मॉरल क्या निकलता था, किसी को याद है जी? एब्सोल्युटली परफेक्ट। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जब एक कछुआ धीरे धीरे करके डेडिकेशन के साथ रेस जीतता है और उसके कंपैरिजन में जो दूसरा कंटेस्टेंट होता है खरगोश, वो सो जाता है, इस और कॉन्फिडेंस में कि मैं बाद में उठूँगा और बाद में करूँगा। और स्टोरी का जो मॉरल निकला वो था स्लो एंड स्टडी विद इन द रेस। एब्सोल्युटली, जैसे ए स्टूडेंट ने कहा फ्रॉम द बैक साइड। लेकिन बहुत साल बाद, ये तो पुरानी स्टोरी है, बहुत सालों के बाद ये कछुआ और जो खरगोश है उन्होंने कहा कि हम फिर से एक बार रेस करें। ये सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? नहीं सुना है? ऑलराइट, आई टेल यू। बहुत सालों के बाद
ये कछुआ और खरगोश ने कहा कि हम फिर से एक बार रेस करेंगे। तो इस बार जो कछुआ था वो तो अपनी स्पीड में चलेगा जैसे पहले चलता था एज पर इज नेचर, लेकिन जो खरगोश था इस टाइम वो प्रिपेयर्ड था डेडिकेशन के साथ। उसने 2, 3, 4 छलांगें मारी और रेस जीत गया। और जो स्टोरी है उसका मॉरल बदल गया। इस बार स्टोरी का मॉरल आया, फास्ट एंड कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। फास्ट एंड कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। यानी कि ये बात कहने का ये मतलब है कि जो आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे बिजनेस सिस्टम में जो कंपटीशन था इतना नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो कछुए का दौर चलता था। आज हमें खरगोश की तरह अलर्ट रहना है हर एक एक्टिविटीज़ में। उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। और शायद अगर मौका मिला तो इसी स्टोरीज़ की एक थर्ड स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा इफ़ आई गेट ए चांस लास्ट, क्योंकि अभी हमें स्पीकर्स को इनवाइट करना है। मूविंग फर्दर नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर सेकंड स्पीकर मौलाना साजिद साहब to come on the stage and deliver the speech. मंचस्व महानुभाव और अजीज स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और सत सत प्रणाम। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तोशे सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा था अब मैं बोलूँगा तो मेरी बातों में असर भी देना। मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले सीए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसों को यहाँ पर बुलाकर, मंच पर बुलाकर अब कुछ दो बोल कहने का हमको मौका इनायत फरमाया, तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मेरे अजीज़ों, क्योंकि आज 14 सितंबर ऐसे तो ये हिंदी जो भाषा है उसका राष्ट्र पर्व है, और इस पर्व पर तरह तरह की ऐसी तकरीबें की जाती है जिसके अंदर यहाँ पर हसीए मीडिया की जानिब से तो तकरीब की गई है कि सद्भावना और ह्यूमैनिटी पर। इसके लिए मैं इनको, ये बहुत ही अच्छा विषय है, इसके ऊपर जो बोलना था मैं बहुत से पहले से प्रिपेयर करता था इसको कि क्या बोलूँगा क्या है, इसके सोचना भी था, लेकिन इतने 2-4 दिन से पहले से ही ये प्रिपेयरिंग चल रही थी। लेकिन माफ़ कीजिएगा कि मैं इसको प्रिपेयर नहीं कर सका अभी तक, दूसरे किसी लवाज़िम की वजह से और कुछ काम की वजह से। आप सबसे यही कहना चाहता हूँ जो कुछ भी प्रिपेयर किया है कि मेरे देश प्रेमियों, ये हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है, बिन सांप्रदायिक मुल्क है। हम सबको जितने भी धर्म के यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने वाले हैं तमाम को अपनी धार्मिक और अपनी प्रवृत्ति करने का तमाम को हक है। मेरे अजीज़ों, हमारे देश का ये नारा है कि विविधता में एकता और अनेकता में एकता, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। मेरे अजीज़ों, इस बात को मैं आपको इस तरह से समझाना चाहता हूँ कि एक बाग होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूल लगे रहते हैं, तो इस बाग को हम अति सुंदर बाग नहीं कहेंगे। उसके अंदर हालांकि सब फूलों का राजा गुलाब है, गुलाब से सजा हुआ बाग है, पूरे बाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूल है, तो हम इसको अति सुंदर नहीं कहेंगे। लेकिन उसके अंदर रंग बिरंगी दूसरी खुशबू वाले फूलों को सजाया जाएगा तो हम इसको अब कहेंगे कि हाँ, ये अति सुंदर बाग है। इसके अंदर कुछ फूल होंगे जो सुंदरता देने वाले होंगे, कुछ फूल होंगे जो खुशबू देने वाले होंगे, और कुछ फूल सुंदरता और खुशबू दोनों देने वाले होंगे। मेरे देश प्रेमियों, मैं इस बात से इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे वतन की जो एक बात है कि विविधता में एकता, इसी पूरी दुनिया में इसी वजह से हमारे मुल्क को एक अलग नज़रिए से, एक ताज्जुब की नज़र से देखा जाता है।
हमें अपनी एकता और अखंडता को बचाने के लिए हमें खुद को इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को जिस तरह से एक बाग को सजाने के लिए, एक बाग को कायम रखने के लिए, उसके फूलों की खुशबू को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से उसको माली को हिफाजत करनी है, इसी तरह हम सबको इस बाग का माली बनना पड़ेगा। इस बाग को हमें खुद सजाना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से इस मुल्क को सजाया, इस मुल्क को अपने खून से सींचा, उन्होंने अपनी भाईचारगी एकता को दिखाकर हम तमाम को इस राह पर पहुंचाया कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। आज हम देखते हैं कि हमारा मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। अब जिस तरह से पहले से ये हमारे मुल्क को जिस तरह से देखा जाता था, उस तरह से अब नहीं देखा जाता, उसका नजरिया बदल गया। जो लोग देशवासियों को एक दूसरे से डराकर और भयानकता वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो मेरे अजीजों, वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे इरशाद भाई ने बताया कि पंच महाभूत की जो बात बताई, इसी तरह से हम सबको मिलकर रहना पड़ेगा। अगर आदमी एक रस्सी होती है, एक लकड़ी दी जाती है तो उसको तोड़ देता है, दूसरी दी जाती है, 3 लकड़ी साथ में दी जाती है तो आदमी उसको तोड़ देता है। लेकिन एक पूरी बारी लकड़ी की उसको दी जाती है तो आदमी उसको तोड़ नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, हमें भी इसी तरह अपनी एकता को पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसको दिखाना पड़ेगा कि हम भी एक बनकर अपने देश को तरक्की की राह पर ले आए और हमारा देश आगे ही आगे तरक्की करता रहे। हमें मालिक ने सद्बुद्धि अता फरमाई है। हमें खुद निर्णय लेना होगा कि हमारी और देश की सुरक्षा और सुंदरता कैसे बाकी रहेगी। हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने भेदभाव को भुलाकर भाईचारगी के साथ अपने देश को आगे बढ़ाया, इस इतिहास को आगे बढ़ाया, हमें भी इस इतिहास को, अपनी भाईचारगी को बढ़ाकर इस इतिहास को आगे ले जाना है। यह और सद्भावना और सौहार्द को बाकी रखना है। अंत में मैं आपसे एक शायरी जरूर कहूँगा। नफरत के सौदागरों को अब मत पनपने दीजिए, नफरत के सौदागरों को अब मत पनपने दीजिए, सौहार्द की बात करने वालों को महकने दीजिए। राष्ट्र के दुश्मन है वो नफरत के बीज बोने वाले, सद्भावना की बात करने वालों को महकने दीजिए। भाई मौलाना साजिद साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उनकी स्पीच में थी वो ये थी कि जो हमारे भारत में नफरत के बीज बोते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, बल्कि उनको भी हमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का संदेश देना चाहिए। Moving forward, I would like to request our third speaker, Shri Shyam Swami ji from Vadodara, and before उनको मैं स्टेज पे आमंत्रण करूं, I would like to request our honorable guest to join us the first word. Of our composite culture, जो भारत का जो कंपोजिट कल्चर है, यहाँ सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन सब रहते हैं। और यहाँ पर एक तरह से हम देखें जो मैडम श्रीमती आरती बेन पटेल, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ नगर पालिका बोरसद है, वो भी एक बड़े पोजीशन पे है। उनका डिजिग्नेशन भी एक बहुत बड़ा है, लेकिन उसके सामने जो श्याम स्वामी जी है, उनका आदर्श, उनका सम्मान रखने के लिए वो आगे भी बैठना चाहते थे। So this is the beauty of India, right? Now, not taking much time, I would like to request Shri Shyam Swami ji to deliver his speech.